Hello dear students, in this video we will describe about the differentiate between SN2 and SN1 reaction. Difference between SN2 and SN1 reaction is very important for your 12th science board examination as well as in JEE and NEET examinations. So please do learn from the video and enjoy your study. SN2, as the name indicates, S stands for substitution and for nucleophilic and 2 for bimolecular. Substitution nucleophilic bimolecular or bimolecular nucleophilic substitution is called as SN2 reaction. Bi stand for 2. Likewise SN1, S stand for substitution and stand for nucleophilic and 1 for unimolecular. This is a unimolecular type and this one is first is a bimolecular. Second point of difference, SN2 reaction is a second order reaction. Whereas SN1 reaction is a first order reaction. SN2 is a second order reaction, whereas SN1 is a first order reaction. Whatever your SN2 reaction, here rate of reaction depends on concentration of reactant, जो आपका reactant है वो, and nucleophile both. Rate of reaction depend on reactant and nucleophile both. That is, rate of the reaction is directly proportional to reactant as well as nucleophile. Here in this reaction, rate of reaction depends on concentration of reactant only. सिर्फ किसके concentration पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट पे. That is, rate is directly proportional to concentration of reactant. So these are the first three basic point of difference between two. Next, SN2 is a one-step reaction or single-step reaction. SN2 is a single-step reaction, whereas SN1 is a two-step reaction. SN1 is a टू स्टेप. ये SN2 कितने स्टेप का रिएक्शन है? वन स्टेप का. और ये कितने स्टेप का रिएक्शन है? टू स्टेप का रिएक्शन. Here SN2 reaction, rate of the reaction as we know depend on both nucleophile and reactant. So if we form here pentavalent unstable intermediate is formed during reaction. During any chemical reaction, pentavalent unstable intermediate is formed. Here, stable carbocation is formed during chemical reaction. Stable carbocation is formed during chemical reaction. यहाँ पे अनस्टेबल पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, जबकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा. मैकेनिज्म किस तरीके से रिएक्शन होता है? तो कोई भी अल्काइल हैलाइड है RH2X, ये आपका रिएजेंट हो गया. उसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ करोगे तो कार्बन और हेलोजन पे प्लस चार्ज रहता है, हेलोजन पे माइनस. कि न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड
दोनों नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक नहीं कर पाएगा। तो बट ऑब्वियस है कि कहाँ से अटैक करना पड़ेगा, बैक साइड से। तो वेन एवर न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आइटम फ्रॉम द बैक साइड, तो इस तरीके से होगा। पुराना कार्बन के साथ हेलोजन का बॉन्ड तो था ही, और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आ जाएगा और एक नया बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 नए न्यूक्लियोफाइल के साथ एक और पुरानी एक। तो पेंटावेलेंट अनस्टेबल बन गया। अनस्टेबल होने के लिए वजह से इट विल सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड द ओल्ड बॉन्ड गेट ब्रेक डाउन, और न्यूक्लियोफाइल के साथ नया बॉन्ड बन जाएगा कार्बन का। तो ये आपकी प्रोडक्ट बन गई प्लस X माइनस। So in this way entire reaction is get converted into one step, whereas here this is intermediate. Clear? And it is pentavalent in nature. Here this is two-step reaction, and step 1 formation of carbocation. Formation of carbocation in presence of protic solvent. In presence of प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट यानी जिसके पास H प्लस होगा ऐसे। तो जो कोई भी आपके RCH2X था उसकी रिएक्शन H प्लस के प्रेजेंस में होगी, तो H प्लस X माइनस को अपने साथ ले जाएगा। तो RCH2 प्लस HX, तो कार्बोकैटायन बन गया। स्टेप 2 में कार्बोकैटायन गेट अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। ये जो आपका कार्बोकैटायन है इट विल बी गेट अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बोकैटायन को आगे से भी अटैक कर सकता था, क्योंकि आगे की तरफ भी कोई नहीं है, और पीछे से भी अटैक कर सकता था। दोनों की तरफ के चांसेस 50-50% है, यानी देर आर 2 पॉसिबिलिटी। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करता इस तरीके से रहता, और न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता तो इस तरीके से रहता। अब यहाँ पे हेलोजन पुराना हेलोजन राइट हैंड साइड पे था, और नया न्यूक्लियोफाइल भी राइट हैंड साइड पे आया। इसको कहते हैं रिटेंशन। जहाँ पे पुराना न्यूक्लियोफाइल था, पुराना X माइनस था, वहाँ पे ही नया न्यूक्लियोफाइल बनेगा, देन इज कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बट अगर पुराना राइट पे था और नया न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट पे आ गया, देन इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% रहती है, और दोनों का इक्वल अमाउंट ऑफ मिक्सर बनता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। व्हाट इज अकर इन अ SN2 मैकेनिज्म होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा, रेसिमाइजेशन होगा। बट हियर प्रोडक्ट में सिर्फ न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड पे जा सकता था। सो हियर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इन SN2, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज टेक प्लेस। जबकि यहाँ पे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों के चांसेस 50-50 थे। दिस इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन अकर इन SN1 रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN2 reactivity order as simple, greater than primary, then secondary, then tertiary. As simple alkyl halide react faster towards SN2 mechanism, then primary, then secondary, then tertiary. Whereas for SN1 reaction, order is tertiary, secondary, primary, and simple, exactly opposite. The reason behind the reactivity of SN2 like simple, primary, secondary, and tertiary is due to steric hindrance. सिंपल में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम रहता है। हिंड्रेंस यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। किसी भी रिएक्टिविटी को आगे बढ़ाने में जितने बल्कियर अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, बल्कियर ग्रुप बढ़ेगा,
उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उतना उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। सिंपल अल्काइल हैलाइड के पास सब हाइड्रोजन आइटम होते हैं, इसकी वजह से रिएक्टिविटी कैसी रहती है उसकी, सिंपल अल्काइल हैलाइड की ज़्यादा रहती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहता है। बराबर, सिंपल में स्टेरिक हिंड्रेंस लोवेस्ट है और यहाँ पे ज़्यादा है। जबकि SN1 मैकेनिज्म के पीछे का ऑर्डर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रीज़न इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। In our chemistry, Williamson ether synthesis follow SN2 mechanism, whereas Lucas test follow the SN1 mechanism. This SN2 SN1 mechanism is very important, so please prepare it carefully and enjoy your study. Bye.